everybody, मैं हूँ फारा खान। वेलकम टू न्यूट्रोजिना प्रेजेंट्स तेरे मेरे बीच में। नए मिलेनियम की शुरुआत में ही यानी ईयर 2000 में सब लोग यही स्टेप करते नजर आ रहे थे, क्योंकि एक नए स्टार ने सबको इसकी आदत लगा दी। देखते देखते ये स्टार सुपरस्टार बन गया और हर फिल्म में लार्जर देन लाइफ रोल्स करने लगा। लेकिन कौन सोच सकता है कि इंडिया के इस पहले सुपर हीरो में कई कमियां थी, जिन पर विक्ट्री पाकर वो टॉप तक पहुंच पाए। तो आइए मिलते हैं उस सुपरस्टार से जिसे हम प्यार से डुग्गू कहते हैं, द हार्ट थ्रॉब ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस, ऋतिक रोशन। डुग्गू, तुम्हें यहाँ बुलाने के दो रीजंस हैं। एक तो दैट वी ऑल लव यू वेरी मच, शुक्रिया। और दूसरे हैं कि शहनशाह अकबर के जो उर्दू के हेवी ड्यूटी डायलॉग बोलने वाला ऋतिक, एट वन टाइम एक सेंटेंस बोलने में भी तुम्हें प्रॉब्लम होती थी। तो आज आई थिंक फर्स्ट टाइम ऋतिक यू आर गोइंग टू स्पीक अबाउट दिस। आर यू? Yeah, if you ask me, I'll tell you. तो ऋतिक, ये ट्रू है कि बचपन में तुम्हें स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होती थी। तुम कितने साल के थे जब तुम्हारी ये स्पीच प्रॉब्लम शुरू हुई? I think I must have been about 6. मुझे ये एक बार एक्चुअली पूछना है तुमसे कि क्या तुम्हारा तुम बात करना शुरू करते हो तो इज देयर लाइक टू मेनी वर्ड्स इन योर माइंड एंड इट्स नॉट प्रोसेसिंग? व्हाट इज इट? Everything seems normal when you start talking. लेकिन जब आप बोलते हो, you get stuck. You just stop and you don't know why. And right from your toes to the ends of your hair strands, you're just in complete shock, and your heart palpitates, and you just don't understand, and you just are so aware of people looking at you. You can compare it to hell. ये कब तक चली डुगू तुम्हारी प्रॉब्लम? 6 साल से लेके कितने उम्र तक ये प्रॉब्लम थी? 6 to 35. I'm 35 now. But you are speaking perfectly all right now. That's because there's a way out. There is a way out. उसके बारे में ही हमें बात करना है कि जब तुम छोटे थे, जब तुम स्कूल में जाते थे, were you made fun of in school? Of course. It's one of those unfortunate handicaps that is laughed at, and people, especially kids, they don't understand that it's because it looks funny. You can't blame them. So the childhood of somebody suffering from a problem like this is pure hell, because when you wake up in the morning till the time you sleep at night, you almost some days dread waking up because you have to go through an entire day where you have to use your speech. डुगू, ओरल टेस्ट होते थे स्कूल में कभी? I used to bunk school. I used to get fever then. I used to get fever. I used to break my hand. I used to get a sprain. I used to get a stomach ache. हाथ तोड़ देते थे। डैडी मम्मी, that they must be supporting you, no? Obviously उनका support तो बहुत होगा, लेकिन but sometimes the love is just not enough, because you love so much that you want the person to be okay, and then it comes out as anger. Okay, come on, why not? Just concentrate hard and just speak it. It's okay. You can do it. और जब वो ऐसा करते थे तो was that harder? Of course it was harder. ऐसा कोई वर्ड होता था जहाँ तुम you'd get stuck? ऐसा कोई, like I lisp, तो जब मेरे sirs आते हैं, it's a big problem for me. I'm lisping right now as I'm talking. तो ऐसा कोई alphabet या ऐसा कोई yeah, sure, letter या ऐसा कुछ होता है कि उस पे आके आप अटकते हो? It's mainly the explosive letters like P, P, Bh, because they're explosive. You have to blow through. And the silent ones like H. The breath keeps coming, but the word doesn't start. Do you remember any embarrassing moment कि ऐसा कुछ हुआ? You're joking now. No, really. One embarrassing moment. The only one that I think is appropriate for me to say right now is when I used to say that I want to be an actor. And I used to go, and people would laugh? And I used to stop. It's like, what am I saying? How can I be an actor if I can't even say I want to be an actor? मैंने सुना है कि people who have a stammer, जब वो गाते हैं वो एकदम, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उसमें. That's true. ऐसा क्यों होता है?
Because there is already a set graph. There's already a set pattern, and you can see that pattern. So when you sing a song, you know exactly how much breath you will pull in, because you know the note has to carry on for that much time. And it's all stretched out, you know. In a song, it's all stretched out. So it's easier. तुम में फिर ये कॉन्फिडेंस कैसे आया कि मैं बनूंगा एक्टर? एक दिन मैं I woke up in the morning and I went to the beach and I saw some boys doing somersaults. I told them, you know, you guys are damn good, you know, I want to learn this. So they started to teach me, and I kept falling. I tried again and again. A couple of days went by, and then one day, I did it. Bang. I was like, wow, I got it, yeah. And then these guys started talking to me, and all I could see were their lips moving, and they were talking fluently. And I said, I can't do that. I can't do that now. Okay, fine. I couldn't do this, and I conquered that. I can't do that. I have to learn from scratch. Start from scratch. Start from scratch is like from A, B, C, D. I used to just repeat A, all B, the, C. yeah, in all ways and forms. So I used to take A and go, you know, say A in all ways possible. All ways that you can possibly think of, and do that with each letter, and then make permutations and combinations of two letters combined. So I just do words all the time, the whole day. और अभी भी तुम्हें ये करना पड़ता है? 1 hour a day, every day. अभी तक तुम ये करते हो, डुगू? What are you saying? Yeah. तो डुगू, जब तुम कॉलेज पहुंचे, ये प्रॉब्लम तुम्हारे लिए और भी मतलब सीरियस हो गई, क्योंकि इस कॉलेज it's girls and you have to interact. Yeah, well, by that time I became really shy and I never used to talk to anyone. But वो So I used to just use my eyes. and your charm and not say anything. और बहुत सारी लड़कियां पट गई इससे? Well, actually, Suzanne was the first girl who I Looked beyond the... In a way, I mean, the first time I met her, I had my worst episode of the stutter. Really? Yeah. We went on a date to the restaurant there. And I had to order something from the waiter. And I had the worst. What are you saying? Worst block. And the waiter was just... Oof. was going like this. Very strangely, Suzanne knew what I was asking for. It was the first time I met her. Connection. But, yeah, and she ordered it for me. तो वो moment था when you fell in love with her and said... No, she's the first girl who didn't make me feel uncomfortable. And the rest is history. Suzanne को भी कुछ कहना है डुगू से. When we first met, to me, he was the most beautiful soul. He was really thin, really shy, and not only the stammering, he had a very severe back problem. Doctors told him that, you know, you must be crazy if you think you want to be an actor. But he just slowly found a way to conquer it. His sister Sunena, his grandparents, the support that came from all of them has also been the constant foundation. His confidence and willpower was what has made him achieve that superstardom. बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी तुम्हारी. Yeah. जब मैं 21 साल का था, I had almost started getting the confidence that I can talk. And at that time, I was diagnosed with a severe case of scoliosis, which is a curvature of the back. The spine was not straight, it was like this. And every time I tried to work out or dance, I used to go into a spasm and I used to be in bed for weeks or months. We went to all the doctors in the world and they all said that, well, you know, with this problem, we don't think you should be an actor because then you have to dance and you have to do action and fight. And if you do that for a couple of years, you'll be on a wheelchair. I'm smiling there, I'm laughing, I'm saying, but doc, that's what I want to do, that's what I am, that's what I really want to do, and I'm crying at the same time, I'm laughing at the same time. तो ये problem कैसे solve की तुमने फिर? I remember what happened was that exactly after 1 year, on the same day that that doctor had told me that you can't be an actor, and I gave up the thought. It was 19th of July, I think. Yes. तुम्हें याद है वो day भी याद है? Yeah. I went to Suzanne and I said, I've made up my mind, you know, if I die doing this, I'll die doing this. But I'll try. But at least I'll live the way I want to live.
लेकिन उसके साथ तुम्हारी विल पावर भी होनी चाहिए ना ऋतिक. Yeah, but you finally realize that you don't have a choice. You have one have to. life. Are you going to not do something about it or die trying, you know? तुम्हारे विल पावर और तुम्हारी इसी डिटर्मिनेशन के बारे में तुम्हारे एक बहुत क्लोज फ्रेंड ने कुछ कहा है. How many people have you got to लॉट्स speak हाँ, on हमने me? बहुत रिसर्च किया है तुम पर. वो देख लीजिए उनके क्लोज फ्रेंड. जब ऋतिक शुरुआत कर रहा था बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आम आदमी के लिए कमज़ोरी हो सकती हैं. जैसे वो हकलाता था, ही हैड अ वीक बैक. उस वक्त कहा जाता था कि लाइट आइड एक्टर्स जो हैं वो हीरो नहीं बन सकते. बट ऋतिक में एक खासियत ये है कि एक बार वो डिसाइड कर ले कि मुझे ये करना है तो यू कैन टेक इट फॉर ग्रांटेड कि वो करेगा ज़रूर. वो कुछ नया सीखना चाहता है और वो सिर्फ सीखना नहीं चाहता, उसमें एक्सेल भी करना चाहता है. ऋतिक रोशन मुझे कल आके कहे कि मैं 10 साल बाद प्राइम मिनिस्टर बनूंगा देश का, तो मैं हंसूंगा नहीं, मैं बोलूँगा ये ज़रूर बनेगा प्राइम मिनिस्टर. क्योंकि एक बार वो डिसाइड कर ले कि मुझे ये करना है तो वो इतना फोकस्ड हो जाता है कि यू हैव टू टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट ही इज गोइंग टू अचीव दैट. मैं तुम्हें जानती हूँ दुगू, तुम जो भी करते हो वो मतलब इतनी गहराई में जाकर करते हो. यू आर अ परफेक्शनिस्ट. Perfection lies in being real. You know, so if I'm doing a shot, I can either think of a performance that I can do in this shot, so that people will say, "Wow, kya shot diya hai," or I can just ask myself, if I was a real person, how would I be in this shot? What would I do? And that means more because that becomes imperfect. लेकिन that becomes real. डुगू तुमने ऐसे ऐसे परफॉर्मेंसेस दिए हैं जैसे कि अकबर. नाउ टू गेट अ रियल पर्सन कि वो ऐसा करता होगा, दैट वो तो तुमसे ही आता होगा ना. Yeah, but it's a combination. No? You take the image of Akbar, but you give him your heart. कुछ The guy's याद a है real तुम्हें guy. एक अकबर का डायलॉग? Yeah, you crazy. हाँ? Takhliya. इसी दिलकश और पुकशिश मोड़ पर Come on. हम मुकम्मल Time for तौर a break, पर guys. एक न्यूट्रोजेना डीप क्लीन ब्रेक नौश फरमाएंगे. तकलिया. वेलकम बैक टू न्यूट्रोजेना प्रेजेंट्स तेरे मेरे बीच में. हम बातें कर रहे हैं विद ऋतिक रोशन. ऋतिक, जब तुम अवार्ड फंक्शंस पे जाते हो, अब भी तुम वो स्पीच पहले से तैयार करके रिहर्सल करके जाते हो? करता था, but now I'm quite comfortable. But there were times कि that तुम्हें डर लगता था कि मैं जाऊंगा अवार्ड लेने और मैं अटक ना जाऊं कभी? ऐसा हुआ है? I'll give you one example of how my life has been. For my first award that I got ever, कहो ना प्यारे. for Kauna Pyare, I was in Dubai, and I wanted to go up on stage and say thank you Dubai, and I could not say Dubai. So I've been running around like a mouse to find one corner where I can say the word some 10,000 times. And my room there, my room was not soundproof and I need to shout the word out. I found a cupboard. Cupboard? There was a cupboard in my room. Gone inside the cupboard, shut the cupboard in the dark. And I've sat down like this and I've shouted Dubai, 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 Dubai. Still not got the confidence. Went out. I need a bigger space because the acoustics were not right for me. So I went out and I went to the loo. And it was a big bathroom, thankfully. But it was occupied. There were 3-4 more people there. Oof. So now I'm loitering in the bathroom, waiting for everyone to exit so I can lock the bathroom from inside and do my Dubai. Finally, they went out. दुबई को निकाल देते ना? Huh? No, I wanted to say it, yeah. तो बोला कि नहीं finally? बोला. कैसे बोला? Full faith, I just took a leap. And I said it and it was absolutely fine. I had the award in my hand. फिर तुमने enjoy किया award? तुम्हें अब भी एक surreal moment लगता है? तुम्हें ऐसा लगता है कि यार ये मैं नहीं हूँ, ये मैं हूँ? You just understand from this that nothing in life is bad. I'm not a star in spite of my problems. It is because I had those problems that I've become a star. It is because of that. So I believe all the people out there who are going through some kind of a handicap, or there is a reason. There is a reason. God is preparing you for something. डुगू, ऐसे यहाँ बहुत सारे बच्चे आए हैं जो सेम प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं. They will ask you questions. वो सवाल पूछेंगे और आप दिल से उन्हें जो कहना चाहते हैं, it's totally up to you. Yeah. तो यहाँ जो पहला सवाल कौन पूछने वाला है? What's your name? मेघा. मुझे सब चिढ़ाते रहे, स्कूल में चिढ़ाते, स्कूल बस में चिढ़ाते, वैसे धापनी कहते. धापनी क्यों? क्योंकि तुम चश्मा पहनती हो. यस.
एक कहानी है, I'll tell you a story. जब मैं छोटा था, my father shaved off his hair. I think we were going to शिरडी, और वहाँ पर हम लोग चढ़ रहे थे सीढ़ी, और तो बहुत क्राउड था वहाँ पर, बहुत सारे लोग थे. They were all shouting, ए राकेश रोशन, ए टकलू टकलू, ए टकलू टकलू. I was so angry that they are making fun of my dad. गुस्सा आया था तुम्हें? बहुत गुस्सा आया. I wanted to, but something happened, something clicked. और मैंने सोचा कि what is the truth? The truth is that my father is bald. टकलू टकलू टक, हाँ भैया टकलू हैं और मुझे पसंद है. I love him like this. So you have the confidence of saying that I like my glasses. It makes me see the beautiful world that is around me. I love it like this. Be proud of it. बेटा तुम्हारा नाम क्या है? युगल। जुगल. Yes, Jugal. मुझे उत्तुल में चिढ़ाते रहते हैं, टोटला टोटला। तुम्हें चिढ़ाते रहते हैं तोतला. मुझे उत्तुल में और उत्तुल पाठ में भी चिढ़ाते रहते हैं। स्कूल बस में और स्कूल में चिढ़ाते हैं कि तुम तोतले हो, तो तुम्हें गुस्सा आता है तभी. मुझे आपके जैसा बनना है। मुझे आपके जैसा बनना है. I should give him my number. मैं आपको मेरा फोन नंबर दूंगा, आप मुझे फोन करो. Are you sure? Yeah. थैंक यू। अब मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ. क्या हम अपने नेक्स्ट गेस्ट को बुला सकते हैं? Please, please. ये वो है जो मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म एक्ट्रेस होकर भी बिल्कुल ही अलग सी है, एकदम अनकन्वेंशनल, चाहे उनके बोलने का स्टाइल हो या फिर उनके बाल, उनके लुक्स. प्लीज वेलकम द लवली एंड वेरी डिफरेंट कंगना रनौत. कंगना लुकिंग स्टनिंग. Thank you so much. कंगना, जैसे मैं डुगू के साथ, ऋतिक के साथ डिस्कस कर रही थी कि उसके कितने सारे प्रॉब्लम थे जो उसने ओवरकम किए इतने बड़े स्टार बनने के लिए, और जब तुम फिल्मों में आए तुम्हारी लुक्स को लेकर लोगों ने क्या क्या कहा, बोलो. जैसे मुझे जब मैं ऑडिशंस के लिए जाती थी तो मुझे कहते थे कि तुम्हारे बाल कर्ली क्यों हैं, रानी मुखर्जी के बाल देखो. फिर उसके बाद कहे तुम्हें डिम्पल क्यों नहीं है, प्रीति जिंटा को डिम्पल है. सो आई रियलाइज दैट यू नो बेसिकली इट्स जस्ट दैट यू कैन नॉट बी समबडी एल्स. सो मुझे लगा कि मैं जैसी हूँ ठीक हूँ, और अगर किसी चीज़ पे काम करना चाहिए तो एक्ट्रेस बनने के लिए आए हैं, उन स्किल्स पे काम करते हैं. लेकिन जब तुमने अपनी पहली फिल्म की, कंगना तुम बहुत ही अलग थी, तभी तुम बहुत ही पतली थी. आई वाज लाइक रूलर थी ये, और तुम्हारे तभी साइज 0 का भी फैशन नहीं था. नहीं था, बिल्कुल और नहीं था. तुम्हारे बाल भी तुम्हारे एकदम ही अनकन्वेंशनल थे जैसे अब हैं. अब तो स्टाइल स्टेटमेंट हो गया है. तो मैं बहुत कुछ करती रहती हूँ. और एक और चीज थी जो लोगों ने जिसके बहुत सारा मजाक उड़ाया, वो थी तुम्हारी जो इंग्लिश की एक्सेंट होती थी. Yeah, definitely I had this still have this thick North Indian accent, which I should have, like, you know. लेकिन ठीक है ना, हम इंडिया में रहते हैं, आई डोंट नो व्हाई हमें इतना कॉम्प्लेक्स होता है. मुझे वो लोग काफ़ी फनी लगते हैं जो 1 महीना लंदन रह के आते हैं और फिर ब्रिटिशर एक्सेंट में बात करते हैं rest of their lives. लंदन में नहीं जाते, एयरपोर्ट से ही एक्सेंट आ जाता है. हाँ, तो हम लोग भी उनका मजाक उड़ाते हैं. सो मजाक उड़ाने में कुछ खराबी नहीं है और मजाक बनने में भी कुछ खराबी नहीं है, लेकिन प्रोवाइडेड कि आप उसके इम्प्रेशंस जो हैं अपने माइंड और अपने सोल पे ना छोड़ें और आगे बढ़ें. कंगना, हमने ऑल द वे आपके गांव को एक टीम भेजी, आपको बिना बताए. देखते हैं कि आपके घर वाले क्या How sweet is कहते हैं. that? हमारे 2 बेटियां और 1 बेटा है. कंगना जो है बीच वाली बेटी है. कंगना जैसे ही बॉम्बे आई फिल्मों के लिए तो हमें थोड़ा सा शौक लगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री में यूँ समझिए कोई चपरासी भी नहीं था. जब वो इंग्लिश बोलती है तो कुछ परसेंटेज जो है वो पहाड़ी हमारी लैंग्वेज की जो टोन है उसमें आएगी मामूली सी. तो जो भी उसके विवाद हैं इसमें, आज वो उसकी पहचान बन गया. हमें उसके बारे में पूरा इतना विश्वास था कि जब वो यहाँ से इतना निकल चुकी है और उसने कहीं जगह पे छलांग लगा दी हुई है, तो तैरना खुद ही सीख लेगी.
उस वक्त जो हीरोइन थी उनका जो पूरा ट्रेड जो था वो ट्रेड वाल का था। तो फिर अब कंगना की जो पहचान है तो उन घुंघराले वालों से बनी। मुझे अपनी बेटी के ऊपर बहुत गर्व है। वी लव यू छोटू। Really sweet. तो छोटू तुम्हारे डैडी ने कहा कि हिमाचल में लोग पहाड़ी एक्सेंट में ऐसे ही बात करते हैं, तो यहाँ आके उस पे इतना हो हल्ला होने का मतलब क्या होता है? Correct. आप अपने मनपसंद स्टार्स की पसंदीदा जानकारी पा सकते हैं। बस अपने एयरसेल पर एसएमएस कीजिए TMBM और भेज दीजिए 58000 पर और जानिए उनका फेवरेट फूड, सनसाइंस, लेटेस्ट मूवीज और बहुत कुछ। तो लेट्स टेक अ न्यूट्रोजेना डीप क्लीन ब्रेक। मैंने हमेशा फोकस रखा कि मैं प्रोफेशनल बन जाऊं, मैं अच्छी एक्टर बन जाऊं, मैं अपने आप को ग्रूम कर लूं। वेलकम बैक टू न्यूट्रोजेना प्रेजेंट्स तेरे मेरे बीच में, जहां हमारे साथ है ऋतिक और कंगना। देखो, यू वर्कड विद हर, तुम्हें क्या इसके बारे में अच्छा लगा जब तुमने काम किया कंगना के साथ? I was absolutely amazed by her spontaneity. I come from a place, from a school which कबर्ड में बंद होके दुबई चिल्लाना जरूरी होता which is not spontaneous. Everything needs to be graphed out. यहाँ पे pause, यहाँ पे ये. But over the time, as I've become comfortable, I've been admiring people who are spontaneous, and that has driven me to trying to become like that. No, he is very spontaneous. I've become thanks to you. तुम नर्वस थी कंगना इसके साथ काम करने में? No, she was not nervous at all. I was nervous. ऐसा नहीं था कि हम लोगों ने सेट से शुरुआत की, हम लोगों ने पार्टी से शुरुआत की। So then later on it became like कि हम लोग सब जैसे फ्रेंड्स हैं और साथ में काम कर रहे हैं। कंफर्ट फैक्टर इसके साथ तो था, लेकिन पहले तुम्हें कभी लगता था कोई भी ऐसे एक्टर के साथ तुमने काम किया हो जहां तुम्हारा कंफर्ट फैक्टर नहीं था फॉर एनी वेरियस रीजंस? मैंने जो नोटिस किया है, आई थिंक मुझसे पूछने से अच्छा है कि उन लोगों से पूछा जाए जिन्होंने मुझसे मेरे साथ काम किया है। बिकॉज मेरी ज़्यादा फ्रेंडशिप किसी के साथ नहीं हुई। मैंने हमेशा फोकस रखा कि मैं प्रोफेशनल बन जाऊं, मैं अच्छी एक्टर बन जाऊं, मैं अपने आप को ग्रूम कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, लेकिन देन आई रियलाइज दैट आई डोंट हैव फ्रेंड्स। तो मुझे लगता है कि कहीं मुझसे कुछ कमी रह गई कि मेरी किसी के साथ सेट पे ज़्यादा बनी नहीं, और अब थोड़ा ठीक है। तुम इसके लिए सुधार कुछ कर रही हो? अभी आई एम मोर ओपन टू लाइफ। ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट स्टक इन माई माइंड। तुम कॉन्फिडेंट हो गई हो और ऐसा लग रहा है तुम्हें with people, लोगों के साथ? or maybe it's because I had this complex that they will judge me and I never kind of mingled with them. तो कोई रीज़न होगा, because मैंने उसके बारे में इतना नहीं सोचा, लेकिन I was kind of protecting myself. तो coming back to the other problem, कभी ऐसा तुम्हें बोला गया कि आपकी आवाज़ डब कर लेंगे हम लोग? मेरी आवाज़ डब करने के लिए तो कहा था, लेकिन एक फिल्म में तो मैं मुझसे बिना पूछे डब भी कर ली थी। तुम्हारी आवाज अलग है। There's a difference के खराब आवाज और अलग आवाज। I don't understand good voice, bad voice. Your voice is either honest or dishonest. I mean, you know, the question I used to ask myself, like for you also, your accent is like this. Do your parents love you? Yes. Do your friends love you? Yes. Are you a real person? Yes. So why can't you play this real person on screen? You're supposed to depict a real person. Exactly. Like when I was wanting to be an actor, people said that no, you can't have a double thumb. But I said films. लेकिन डुगू कहो ना प्यारे में हमने काफी कोशिश करते थे छुपाने की, लेकिन अब तुम एकदम बोल्ड हो गए हो. This is me, right? And I'm a real guy. And in the movies, you're supposed to depict real people. And who says that people don't have double thumb? Who doesn't love me? Oh, I'm sorry, I can't be your friend because you have a double thumb. I love you, Dugu. And I love you more because you have a double thumb. I love you doubly more. कंगना, जब तुम जाती थी अवार्ड एक्सेप्ट करने, तभी तुम्हें कभी ऐसा लगता था कि मुझ में ऐसा कुछ भी सुपर ह्यूमन नहीं है? मैं वहाँ जाती हूँ स्टेज पर हमेशा ब्लैंक आउट हो जाती हूँ. कुछ ऐसा रिहर्स करके नहीं जाती हो? या मैं रिहर्स करती हूँ, मैं करती हूँ, लेकिन but there you just kind of blank out. और अभी मैं नर्वस नहीं हूँ, but anything can make me nervous, like anything. तो मैं कुछ और नर्वस तुम्हें कर देती हूँ. अगर मैं कहूँ कि ये ब्रेक लिंक माइंड ब्लोइंग इंग्लिश में आप बोल दो, तो क्योंकि डुगू ने तो कहा नहीं मुझे अकबर की लैंग्वेज में, सिर्फ तकलिया करके निकल गया.
तो कंगना अब तुम एक ब्रेक ले लो यार. Since Farah is insisting that I announce a break, I shall comply with her wishes and immediately ask for your attention to be drawn to the fact that we are now about to embark on the short commercial break. I can speak English, yes. A short Neutrogena deep clean break. Very good, yeah, Kangana. Back to Neutrogena presents तेरे मेरे बीच में, जहां कई मुसीबतों का सामना करने के बाद सबसे बड़ी मुसीबत यानी मेरा सामना करने बैठे हैं ऋतिक रोशन और कंगना रनौत. देखो हमारी ऑडियंस मेंबर को मिलेगा एक न्यूट्रोजेना गिफ्ट हैम्पर. Okay. तो इसमें से एक नाम निकालोगे डुगू तुम, और हमारी ऑडियंस में आई हुई एक लकी लड़की को एक न्यूट्रोजेना गिफ्ट हैम्पर मिलेगा जिससे उसकी स्किन और भी ब्यूटीफुल और हेल्दी हो जाएगी. Wow. See how good I am at this. Okay. And the lucky winner is Shweta. श्वेता. ओ दो. That's for you. Don't fight, share it. Thank God दो ही श्वेता थी. 3-4 होती तो प्रॉब्लम होता. I think the first one's name is Shwe and the second one's name is Ta. एक्चुअली किसी भी चीज का कुछ भी बन सकता है, बस समझ बूझ और अक्ल एंड ऑफ कोर्स विल पावर की जरूरत होती है. यही सोच के हमने एक गेम डिवाइस किया आप दोनों के लिए. तो हम ऐसे कुछ प्रॉप्स यहाँ रखने वाले हैं और जैसे मैं बोलूंगी गो वन एट अ टाइम, यू हैव टू यूज दोस प्रॉप्स एंड यू हैव टू से व्हाट इट इज. पहला प्रॉप लाया जाए प्लीज. ओ गॉड, ये पहला ये क्या है यार? अब आप महाभारत. अपनी तरीके से यू कैन यूज इट. तुम भीम हो सकते हो, वो द्रौपदी है. Slug it out. No, I think going with the theme of this episode, I think I will use this as the Gadha, the holy Gadha that should be used for the people who laugh at handicaps and have got narrow accents. sense of minding. Yeah. And accents. तो ये इन Handicaps and accents. Anybody has ever laughed at any handicaps? You're gonna get it from us. Have you? अब ये प्रॉप थोड़ा मुश्किल है. Okay, this is the vernacular crown crowned by me on Kangana for turning from the ugly duckling to the beautiful swan. Look at the face. That's it. कंगना, ये क्राउन तुम वर्ल्ड पीस के लिए यूज करोगी कि नहीं? Yes, and my message to all the ugly people, be proud of your ugliness. Yeah. कंगना, अभी तुम्हें भी इसे यूज करना है. ये क्या है? बैक स्क्रैचर. ये And to slap also. ये मैं भी एक यूज करना चाहती हूँ. कीपिंग के डुगू के ये नए लुक को मद्देनजर में रखते हुए प्लीज खड़े हो जाओ डुगू. कंगना प्लीज कम बिहाइंड. Yes. इसको ऐसे पकड़ो. Huh? एंड Oh, yes, right. You look like एंजल really. ऋतिक. Oh, that is so Oh, I true. can fly now. I have wings. दिस इज एंजल ऋतिक. Oh, you are such an angel. कंगना ये ऋतिक, ये लो तुम्हारा प्रॉप ये और ये मेरा. क्वाइट हैवी. ये क्या हो सकता है? ये हो सकती है एक चाबी. ये एक चाबी है ऋतिक. और आपके जो नट बोल्ट हैं वो उनको थोड़ा ठीक करने के लिए. और ये I think okay. और अगर आपके दिमाग की चाबी गुम गई है तो इसको खोलने के लिए Right. वाओ. Correct. You can also use it to ये क्या है? check the state of your heart. Let me see. Are you okay, baby? Are you all right, baby? Yeah? All good inside? Yeah, feeling good? Okay. Yeah. She's okay. She's all right. और कुछ, और ये उन लोगों के लिए जो अपना खाना गिरा गिरा के खाते हैं. तो not bad, you all both have done very well.
लेकिन प्राइज आपको अब नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा एक छोटा सा ब्रेक। Okay. और उसके बाद हम मिलते हैं ऐसे कोई लोग से जो मेन स्ट्रीम, जो नॉन सेलिब्रिटी हैं, लेकिन उनकी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है कि हम चाहते हैं आप उनसे मिलिए। जी। सो लेट्स टेक अ न्यूट्रोजेना डीप क्लीन ब्रेक। आपकी फिल्म मैंने देखी कोई मिल गया, मैं रो रो के थिएटर में बोल रही थी कि मुझे जादू चाहिए मेरे बच्चों को ठीक करने के लिए। So I have to tell you, from this day on, you're my inspiration now. देखा तुमको जब से बस देखा तुमको यारा। वेलकम बैक टू न्यूट्रोजेना प्रेजेंट्स तेरे मेरे बीच में, जहां हमारे साथ है ऋतिक और कंगना। अब हम मिलेंगे एक ऐसे कंपोजर से जिनके लिए ये सब करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा था, क्योंकि शी नॉट ओनली सफर्स फ्रॉम डिसलेक्सिया, लेकिन वो एपिलेप्सी से भी सफ़र करती है, फिर भी वो म्यूज़िक कंपोज करती है। मेरा नाम पूजा कपूर है, मैं मेरी माँ के साथ ही बड़ी हुई हूँ। शी इज़ अ सिंगल पेरेंट। मैं एक दिन मेरे भाई के साथ मॉम के साथ गई हॉस्पिटल चिकन पॉक्स का इंजेक्शन लगाने, और मेरे भाई और मेरा इंजेक्शन दोनों मुझे ही लगा दिए गए बाय मिस्टेकली, और तब से मेरी ज़िंदगी में ये बदलाव आया कि मैं फिट्स पेशेंट बन गई। बहुत ही बड़ा सदमा पहुंचा क्योंकि फिट्स आने शुरू हो गए इसको, बट वो बिल्कुल फुल ऑफ लाइफ है। मैंने उसको हर वक्त बढ़ावा ही दिया है कि तुम जो करना चाहो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मॉम ने बोला था कि तुम अगर गाने बजा रही हो तो तुम कंपोजिंग करना क्यों नहीं शुरू कर देती, तो मैंने कहा ठीक है मैं कोशिश करती हूँ। तब से मेरा सफ़र शुरू हो गया। प्लीज वेलकम पूजा कपूर। मुझे ये देख के खुशी हो रही है कि शी इज वेरी चीयरफुल, हैप्पी। आज बहुत खुश है ये शो पे आने के लिए कि ऋतिक जी से मिलेंगी क्योंकि और मैं फरहान ऋतिक जी से सर को मिलेंगी। बहुत पसंद करती हूँ, दैट्स अ फैक्ट। मैं आपको एक छोटा सा बताना चाहती हूँ स्पेशली टू ऋतिक जी कि 18 अगस्त 2003 में आपकी फिल्म मैंने देखी कोई मिल गया, और मैं इतना रोई हूँ, इतना रोई हूँ, इतना रोई हूँ, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि जस्ट बिफोर दैट द इंसिडेंट हैड हैपेंड विद हर एंड माई सन हैड मेट विद एन एक्सीडेंट। तो मैं रो रो के थिएटर में बोल रही थी कि मुझे जादू दो, मुझे जादू चाहिए मेरे बच्चों को ठीक करने के लिए। Exactly 3 weeks later, she started playing the keyboard. So Jadoo did come. Yes, absolutely. इसकी पहले कोई ट्रेनिंग थी म्यूजिक में? कुछ नहीं, अपने आप से कुछ भी नहीं। But you know, it was not because of the film. It was inside of you all those years. And if you ask me, if you didn't have these problems, maybe you would have never discovered that you could compose. मुझे लगता है पैदाइश से था इसमें, क्योंकि she's got a very sharp sense of hearing. आप ग्राउंड फ्लोर पे कुछ बात करो, ये फर्स्ट फ्लोर पे बताएगी क्या बात हो रही बाप रे, थी। बहुत डेंजरस हो यार पूजा तुम तो। बहुत ही शार्प है। लेकिन पूजा, कभी तुम्हें खुद डिप्रेशन होता था या तुम सैड हो जाती थी? नहीं, हाँ, इस जर्नी में कभी भी सैड नहीं हुई। अगर मैं कीबोर्ड यहाँ मंगाऊँ तो तुम कुछ प्ले करोगी हमारे लिए? मैं क्यों नहीं प्ले करूंगी, और खास करके साथ में मेरा फेवरेट कैरेक्टर जो बैठा हुआ है। चलो कीबोर्ड मंगाओ पूजा का प्लीज। ये कुछ खासियत है जो ये बजाती है, एक तो एक ही उंगली से बजाती है, एक ही उंगली से? एक ही उंगली से बजाती है, और दूसरा वो बोलती है मुझे खाली वाइट कीज पसंद है। ओह, तो इसकी जो भी म्यूजिक है सारी वाइट कीज पे है। पूजा ऐसा क्यों ब्लैक कीज नहीं बजाती हो जरा भी? Because she's a genius and every genius has some eccentricity. तो शुरू हो जाओ पूजा।
So I have to tell you, from this day on, you're my inspiration now. You're going to make me work harder. Thank you. पूजा, हम तीनों की तरफ से आपके लिए एक चेक है 1 लाख का। पूजा को तो हमने कुछ दे दिया एंड शी गेव अस अ लॉट मोर, लेकिन ऋतिक, तुम्हारा भी एक ऋतिक रोशन फाउंडेशन शुरू किया है तुमने। It's a charity foundation. Just access for me to try and give back and help people as much as I can. तो उसके लिए हमारी तरफ से ये 1 लाख रुपीस का चेक है आपके ऋतिक रोशन फाउंडेशन के लिए। लेकिन आप हमारे ऑक्शन के लिए क्या लाए हो? हाँ, I have. क्योंकि यू नो कि आपकी जो भी चीजें हम ऑक्शन करेंगे और वो पैसे भी चैरिटी में यूज होंगे। That's very good. I have got some hats which I have used in kites all over the film. कंगना, आई हैव गॉट अ गाउन गाउन पहना है आपने कहीं? जी हाँ, और उसमें बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज भी हुआ था। तो लेके आओ ये चीजें प्लीज। अरे कहाँ बैठ गए? सॉरी, अभी शो का खत्म में मैं भी तो नहीं तुम्हें कुछ दूंगी ना, स्टेप ऑफ द वीक होता है। कंगना चलो। ये सच है कि आज भी जब तुम ज्यादा खर्चा करती हो तुम्हें अपने मम्मी डैडी को हिसाब देना पड़ता है? जिस महीने में मेरा एक्सपेंडिचर शायद थोड़ा ज्यादा है, he'll tick mark and put one question mark. What is this? मैं दीपिका पादुकोण। कभी ना कभी अपनी ग्रेजुएशन, कभी ना कभी, हाँ, जरूर मेरे मरने के बाद भी हो सकता है। नहीं, बनने के बाद कैसे हो गए? दीपिका, आपके ड्रीम मैन के आईज किसके होने चाहिए? अर्जुन। अर्जुन। ऋतिक। नाक किसकी जैसी होनी चाहिए? सलमान। कान? वन रणबीर खान एंड वन इमरान खान। कौन हो तुम? इनका प्यार, ये मेरे पति है। हम दंपति हैं। दंपति? मुझे तुम्हारे पति और संपत्ति दोनों में रुचि है। मैं नहीं दूं किसी को न दूं, ना दूं मेरा सजना। अगर आपके दिमाग की चाबी गुम गई है तो इसको खोलने के लिए वाह,